जस्ट हमें पता ही नहीं होता आगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें क्या मिलने वाला है, व्हाट आर वी फेसिंग, द कॉर्पोरेट स्लेवरी दैट वी सी। वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट मुबशिर, जब मैंने कम्युनिटी में लीड करना शुरू किया था ना, मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि आई एम एक्चुअली एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है, सब यही बोलेंगे यार कि हाँ बुराइयां तो बहुत है, दरवाजे से निकलते सब ये करेंगे। हमें एम्पावर करना है वुमेन इन टेक को, हमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ऐसी जिनसे वो है ना लर्न कर सके, एक दूसरे से कनेक्ट कर सके और वो ग्रो कर सके। हाउस द लाइफ एट IBA एंड कज अब आप फर्स्ट सेंस को भी जानती हैं, इनको आई एज्यूम और भी फर्स्ट सेंस को जानते होंगे, तो आप किस एंगल से सुपीरियर फील करती हैं? ओह माय गॉड, और तो मैंने कोई काम नहीं किया आज। That's what most of the developers do, right? Don't do anything. I'm gonna get bashed by that. I'm really sorry, guys. Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of Elastic Connection. Today we have two very exciting guests today. I'm your host Mubashir Hayat and we have Sauda. She's a senior consultant and we have Kashish Fatma. She's a front-end developer here at ByteCorp. So guys, how are you? Very good. You're great. और आप कैसी हैं? Actually exhausted. Why? Because Sauda said that when she met me, she was like, you know, you look really exhausted. Although मैंने कोई काम नहीं किया आज। That's what most of the developers do, right? Don't do anything. I'm gonna get bashed by that. I'm really sorry, guys. और आप बताएं Sauda. Let's start by your guys' background. Let's start by Sauda. Tell the audience about yourself. Yeah, so as Mubashir introduced me, so my name is Sauda. I have done my bachelor's from IBA and I've done my master's also from IBA. And an interesting fact है कि दोनों में सेम ही GPA था। कितनी थी? Please don't ask personal questions. IBA वालों से तो पूछ सकते हैं कि नहीं? 3 above थे यार। चलो बहुत है। एंड आपने बैचलर्स किस चीज़ में किया था? कंप्यूटर साइंसेस में किया था। Okay. फिर मास्टर्स मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। Oh, nice. Yeah, so currently I am working with FWU Okay. as a senior consultant. And so my work is basically involved with as a business analyst role. So more on client facing, stakeholder management and all that stuff. And so it's work and work. Yeah. So yeah. The difference, huh? Okay. So yeah, that's it about me. And what about you, Kashish? I actually work here. Like literally at the place where I'm sitting. Why are you telling that being so sad that I actually work here? Be energetic, yaar. I work here. Right? Okay, so I'm going to introduce myself properly. My Okay. name is Kashish Fatma and I work as a software engineer at ByteCorp. And my main work comprises of mostly front-end development, but I'm, very much open to learning, so gradually moving onwards towards being a full-stack engineer. When it comes to graduation, I've done my bachelor's in computer science from FAST and I graduated in 2022. Okay. आप कब graduate हुई थी? Sorry. You graduate. बल्कि आपने तो masters भी किया हुआ है तो. Just think. Old is. No, I'm not. I'm not making you feel old. I'm making you feel experienced. Like you're more able than me. आपने masters किया हुआ है. That's what. Senior, like. I have 5 years of experience. Yeah. Dang. So I did my full-time MBA and my job together. So Okay. it's like two things together, you know. So it was quite tough at that time. But when I look way back, it was a very interesting time because I was able to manage a lot of things, you know. So Yeah. अब work तो होता है, but कभी कभार बहुत ज़्यादा curiosity भी होने लगती है कि कुछ कर लें. Yeah. So yeah, to make a change in the society, do something, you know. Mm. So that is why I joined Pivik with Kashish, you know. So it is a very interesting fact. We were colleagues working together and Kashish went like कि वो एक दिन walk कर रही थी बाहर और सबका impression ये था कि यार उनसे बड़ा डर लगता है से बात करें और मुझे भी डर लगता था apparently first time में कि यार मैं कैसे initiate करूँ बात को. Okay. जबकि आप IBA से थी, IBA वाले बहुत social होते हैं फिर. यार आप बहुत ज़्यादा जो है ना Yeah. सोशल तो होते हैं. हाँ, that's a fact. कुछ मसला था मुझ में. नहीं it's about the मसला apparently. खैर फिर हम फिर मैंने उनसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, उनके लाइक्स डिसलाइक्स पूछे, उन्होंने मुझे पूछे एंड देन वी टॉक्ड अबाउट Pivik and then What's Pivik? Audience को नहीं पता ना Pivik क्या है. Yeah, let's get on to that. I think once Sauda is completed with her story. yeah. So I just wanted to tell the story. बाकी Kashish will introduce what Pivik is. So basically फिर हुआ ये कि मैंने बोला कि I really want to work for a community where
we have women presence और हम कुछ change करें society के लिए. So she introduced Pivot to me कि Okay. it's women computing where we actually organize learnings होती हैं, where we actually want women to come forward and learn, you know. So it was very interesting to learn from that. And at that point in time, I was actually appointed as a marketing lead at Okay. Pivot. So yeah. Oh, And now Kashish can, I think, introduced Pivot. I guess Pivot पे जाने से पहले एक थोड़ी सी एक डायरेक्शन बदलते हैं हम थोड़ा सा, because I have done, I don't know, 15 podcasts यहाँ पे, and me myself I am a fast gen, तो मेरी majority interactions fast gen से है. I have a few friends from LUMS, few from IBA, लेकिन वो scattered है थोड़े. This is me like having an IBA guest for the first time on my podcast, Oh right? my God. So that's an honor for me. Yeah, that's an honor for you. I don't know, but that's अब आपके ऊपर एक वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि you're gonna represent IBA इधर जब तक कोई और IBA वाला नहीं आता. Oh my तो God. Okay. how's the life at IBA, and cause अब आप फास्ट सेंस को भी जानती हैं, इनको I assume और भी फास्ट सेंस को जानते होंगे, तो आप किस एंगल से सुपीरियर फील करती हैं? Oh my God. यार ये तो बहुत क्वेश्चनाइज क्वेश्चन कह दिया, टफ क्वेश्चन. No, you don't have to answer superior वाला part. That was just me making fun. सही है, I'm sorry guys, लेकिन just Nahin, actually, life at IB is very good because there are a lot of socializing platforms that you get, networking platforms मिलते हैं, learning platforms मिलते हैं आपको. IBA ने अपना काफ़ी progress कर लिया है चीज़ों में, you know, and so you know you are connected with the industry a lot. You're learning every time. You have a lot of experienced teachers coming up with a lot of new ideas. So while when I was doing my MBA, so I thought it was only based on होता है ना किताबी बातों के ऊपर based होगा, but it was more practical, you know, and teachers used to bring in more practical exposures. वो आपको industry visits करा रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं, you know. तो that was a good learning for me actually, you know, कि I was able to learn कि industry practices क्या है, किस तरह से चल रहे हैं, you know. So I think IB gives you a good environment to be in, and you get to network a lot. And right now also we have alumni groups where we have to attend events, awards होते रहते हैं, events attend करते हैं, Okay. उसमें alumni से connect करते हैं. So yeah, so और बैचलर्स की लाइफ कैसी थी? masters की life सही थी because it was work and पढ़ाई, Yeah, but bachelor's की life was party, I must say. okay. Because I had a lot of friends and really good friends. Like I made friends in IB only basically. So Okay. while back when I was in school and college, तो मेरे दोस्त मतलब friends थे, पर ऐसा था कि कॉलेज में फ्रेंड्स बने थे, बट आई वाज मोर काइंड एम्बीवर्ट पर्सन होता है ना, लाइक जिससे बात करूँ तो वो आपसे बात करेगा, या जिससे बहुत फ्री होगा तो बस बोलना शुरू किया तो बंद ही नहीं होता ना, कि आखिर में लोग हाथ जोड़ रहे होते हैं, प्लीज़ मत बोलो. Okay. तो ऐसा होता है. तो फिर IBA में मुझे फ्रेंड्स मिले बहुत अच्छे, कॉलेज में भी थे, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, रूमिंग मिली, एंड पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करते थे, मजाक के टाइम पे मजाक भी करते थे. पढ़ाई is like an hour in a week, right? नहीं ऐसा भी नहीं था, because my parents were quite strict about studies, Okay. you know, so yeah. So yes, exactly. So bachelor's life was very nice. I miss it a lot because हम कभी कभार क्लासेस बंक भी कर लेते थे. अब कभी कभार मेरा तो पूरा यार जा रहे मेरे टीचर्स मुझे मारेंगे पकड़ के यार. सो ये आपने अपना बैचलर्स का एक्सपीरियंस बताया, आपने तो मास्टर्स किया नहीं अभी, बट यूर बैचलर ग्रेजुएट फ्रॉम फास्ट, क्लैश करें थोड़ा बहुत, कुछ भी? नो नॉट properly. I'll tell you. देखो कशिश पढ़ाई मत बताना बिल्कुल. I'm not going to say anything about fast. I'm just going to tell you about this this story. My sister studies at IBA, and sometime back एक GDSC का event था. They went to FAST का main campus, वहाँ पर कोई session करवाने के लिए. So my sister went with them as well. So when she came back, I got loaded with messages saying, you were studying in an asylum. Like, that was a mental institution that I came from. The entire environment was so gloomy. Nobody wanted to talk to anyone. And apparently, क्या हुआ था कि she got to interact one Fastian वहाँ पर. तो she said कि यहाँ पर कोई community events नहीं होते, यहाँ पर कुछ entertainment के लिए तुम लोग क्या करते हो? तो he said कि कुछ भी नहीं यार, बस classes attend करते हैं और फिर घर चले जाते हैं. Back to back classes होती है, assignments, projects, and then we just go home. And she said कि no wonder, because obviously when I was in university, my sister got to see me as someone
who was very gloomy at that time. So, you know, I have a certain reputation in university for a reason, because I was mostly very I don't know what reputation you are talking about. I don't know. mostly in my batch. I don't know. I don't know either. It was like, it wasn't really something well established. It was a very subtle thing. Yeah. So the reason was that all of us, it's not just me, all of us, we're very, very pressurized by studies. When it comes to the entertainment part, the campus is located at such a location. I feel like entertainment doesn't want to come to us. So yeah. So if there's like something that's, चीज़ें outsource हो जाती हैं, कोई ना कोई किसी तरह के partners आ जाते हैं जो किसी तरह के community events करवाएं, entertainment करवाएं. Not gonna lie, even the students don't want to come to university. So दूसरे लोग ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है. मैं तो मजे से जाता था यूनिवर्सिटी. मुझे होता था पढ़ना नहीं है, हरकतें करनी very है. pissed off. You know what, Kashish? I found you very social also, because you working for a community was actually very. I was quite amazed about it, because I see Mubashir also very kind of an social person. You know? मैं भी यूनिवर्सिटी में जाके हूँ. I was at the yes. See, so I think university is kind of a perspective you take along. I think it's that. I think आप कैसे रह रहे होते हैं, आपका कैसे होता है. I think वो ज़्यादा matter करता है. Exactly. कि हम यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहे हूँ कि वो ऐसा एनवायरनमेंट देता है. बिल्कुल. बट आई फील वो थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि IB इज़ वेरी सेंटर ऑफ द सिटी, इफ़ नॉट सेंटर ऑफ द सिटी. बहुत एक्सेसिबल है. फास्ट का ये है कि आप मतलब एंड में तो मुझे आपने आई गेस 2 साल बाद ही ऐसा होता था कि पता भी नहीं लगता था यूनिवर्सिटी आ जाती है. बट आई एम नॉट गोना से कि ऐसा सबके लिए होता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग बोलते हैं आते रास्ते नहीं ख़त्म होता, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो. तो वो इनका भी वही वाली स्टोरी है कि मतलब पढ़ने के लिए तो आ जाओगे, लेकिन कोई इवेंट होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ होगा तो सोचना पड़ेगा. हमारा उल्टा होता था. हमारा इवेंट होता था, हम आ जाते थे. पढ़ने का होता था तो हम सुबह सोच रहे होते थे. सुबह उठते थे और मैसेज करते थे हर दोस्त को, चलने. बोलते थे यार 1 बजे सेशन है, पहले 4 क्लासेस हैं, क्लासेस मिस करो, सेशन में चलेंगे. तो दैट्स अ डिफरेंस थोड़ा सा. That's a big difference. And I think that depends on bachelor's life, because my bachelor's life इतना ऐसा होता है ना कि उसमें ना एक नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है हमारा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता ही नहीं होता आगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें क्या मिलने वाला है. व्हाट आर वी फेसिंग, द कॉर्पोरेट स्लेवरी दैट वी से. Yeah. So that's a major एक नहीं होता, एक मुंह पे स्लैब होता है आपको, oh my god you back to reality, रोज काम पे जाना है, 9 to 5 करना है, तो that's something very एक अब पहले बहुत फैसिनेटिंग लगता था. लोग 9 से पढ़ जा रहे होते थे ना, तो घर पे भी आप लड़ रहे होते थे, अब्बा जा रहे हैं ऑफिस, आप बोलते थे वाह यार ये तो ऑफिस जाते हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं. हमारी लाइफ में देखो रोज पढ़ाई करने वो जा जब रहे तक पेरेंट्स होते हैं ना तब तक बहुत फैसिनेट करती है वो चीज़. Actually, job life में आकर फिर समझ में आते हैं पेरेंट्स की struggles. That's Exactly. a completely different topic though, but still. बट जबकि हमारी लाइफ इज़ कंपैरेटिवली बहुत आसान, बहुत ईजी है. हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटीज हमें मिली हुई हैं वो नहीं मिलती थी वहाँ पे. Or Makes I sense. would say कि based on generations, based on cultures, वो difficulty level increase हो जाता है. जैसे कि हमारे मुझे तो लग रहा है आसान हो रहा है. लेकिन ऑफ कोर्स हर जनरेशन के अपने मसले होते हैं, हर जनरेशन की अपनी होती है. जैसे जब आई क्लियरली रिमेंबर कि मैं जब मैट्रिक में था तो मतलब एज अ गाय आई डोंट नो गर्ल्स को क्या फैसिनेट करता है. हर पर्सनल टू पर्सन, बंदे टू बंदे होता है. तो मुझे ना गाड़ियाँ बहुत फैसिनेट करती थी, मुझे अभी भी करती हैं. ठीक है. और आई रिमेंबर कि मैं देखता था यार कि करोला है 10 लाख की, 12 लाख की, आई एम गोना बाय वन. ठीक है. और अब कौन सी 10-12 लाख की मैं मैट्रिक में था. ठीक है. अब वो गाड़ी लाइक 60-65 लाख की है. ठीक है. वो गाड़ी 60-65 की है और वो भी पिछले 2 साल में हुए हैं. अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, कुछ नहीं जाऊँगा. मैं सिर्फ उसमें जाऊँगा कि मैं ड्रीम्स में जाऊँगा कि आप सोचते हो कि यार यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, इसके बाद इतनी जॉब लगेगी, इतनी सेविंग करूँगा, इतना होगा. एंड देन वो जो इन्फ्लेशन है वो इतनी हिट कर गई कि शायद हमारे पेरेंट्स में आई डोंट नो किस किस के घर हैं, कौन कौन किराए पे रहता है. बट उस टाइम पे फिर चीज़ें थोड़ी अचीवेबल थी. अब जस्ट थिंक अबाउट बाइंग अ घर अपना, तो नो. That's a very different discussion, and I think it should be brought up कि being in the like working a job, अब जाकर हम लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ है कि we have to there are certain pressures. I won't lie, I also have this ये मेरी एक want है कि I buy my own car. सही है. So भले कितनी छोटी सी हो, भले वो एक मेहरान हो, being a woman specifically, there is this saying as well कि driving liberates a woman. Yeah. You know about that? Yeah. So मुझे वो चीज़ करने का बहुत शौक है, लेकिन in the end I'm always looking at different possibilities. I'm thinking कि क्या मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए. Maybe that would be better for me. Also, when it comes to buying a car, then we come back to the finances. बहुत expensive होती है.
there is also like loads and loads of, you know, trust issues with the person that you're buying a car from. So I think there should be proper, what do you say, talks or like community work होना चाहिए, या किसी तरह की है ना एक तरीके से communication होनी चाहिए कि ताकि people don't feel alone in these matters. हाँ, और आई फील एज अ गाय मेरे पास मतलब इफ जैसे आपने बोला ना कि यू वांट टू हैव अ कार ऑफ योर ओन, तो उसमें तो आप लाइक 5 लाख की भी गाड़ी आ जाती है, Yeah. ठीक है. और आई फील एज अ गाय मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हूँ इस सेंस में कि मैं कहीं भी जाके गाड़ियाँ देख सकता हूँ अगर आपको लेनी है. Yeah. यू डोंट हैव अ ब्रदर और अ फादर टू गो अलोंग. तो और आई थिंक ये इतना बड़ा सोसाइटल इशू है कि इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते. Actually, this societal issue I would talk about because I just attended that event. उसमें there was this girl who was sharing her experience. It's not about the cars also even, पता है? If you're an entrepreneur and if you are finding an office space, right? So if you go somewhere and find an office place for yourself, so you're going alone because you are the owner of it, right? So you have to make the decision. So Yeah. क्योंकि आप छोटे हैं तो वो आप जब घुसते हैं अंदर तो वो आपसे पहला सवाल करते हैं, बेटा किसी बड़े को नहीं लेके आए हो. Yeah. And you're a woman, so like, बेटा अब्बा को नहीं लेके आए. And you're like, That must "Dude, be I don't want frustrating." my dad everywhere. And That would have been so frustrating. ऐसा ट्रिगरिंग लगे कि आप नहीं जाओ और वो बोले बेटा अब्बा का है या फिर जो भी का है. अच्छा, ये मेरा भी बहुत बड़ा कंसर्न है. Whenever I think about buying a car, मेरा दिल चाहता है कि काश एक ऐसा ग्रुप होता, या लाइक यू नो आई हैड लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और लाइक अ कम्युनिटी जिसमें मैं जाके कहती कि आर देयर एनी पीपल अवेलेबल, भले लड़कियां भी हों, लड़के लड़कियां दोनों, who can, you know, tag along with me and we can go look at cars, or you know we can look at like कि हमें कहाँ से ख़रीदनी है. अगर हमें कोई गाड़ी मिल गई है तो हमें उससे जाकर जो भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, जो करना है, गाड़ी देखनी है, उसके लिए कैन दे टैग अलॉन्ग विद अस. सो यू नो दिस इज़ मेरी यही बात है कि सिंस मैं कम्युनिटी चलाती हूँ तो मेरे दिमाग में कम्युनिटीज़ बहुत चल रही होती है. हर चीज़ के लिए मेरे पास एक कम्युनिटी आ. अगर आपको इस तरह की कम्युनिटी मिले तो मुझे भी बताइएगा क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें सीखनी है, मुझे भी इतना so I just share a personal experience with you. So we are 3 sisters. I don't have a brother apparently. So the one who's younger than me is like a brother to us actually because वो पूरे लड़के की तरह है. तो उसका ऐसा सीन होता है कि वो कोई भी काम होना तो हर कोई इसको बोल रहा होता है, honey do this, honey do that, you know. And she's running her own business also. So उसकी एक आदत है कि you know, तो काफ़ी स्टीरियोटिपिकल हमारी सोसाइटी है ना कि जब कोई लड़की काम कर रही हो तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं देख के कि यार अच्छा ये वाला काम भी कर लेती है. Oh my God, it's the girl. So we were traveling right now. She planned the whole trip herself. So everybody was very supportive around. Okay, oh my God. But you know, so when you talk to somebody else, so वो काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार पूरा ट्रिप प्लान कर लिया यार, सब बातचीत पे खुद ही की यार, सब खुद कर लिया, मतलब गए थे, you know. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्टीरियोटिपिकल बना हुआ है कि हम नहीं जा सकते या हम नहीं कर सकते. आई थिंक हर कोई इंडिविजुअली अपनी एक प्रेजेंस और इम्पोर्टेंस रखता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आदत होनी चाहिए अकेले निकलने का. बट आई नो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि हालात नहीं करने देते हैं. That does bring us to the topic of how why this has occurred and where did this root from, कि cause क्या था इसका, किस वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं. इस पे आते हैं. एक बात पहले थोड़ी सी ऐड करनी है कि वो जो आपने बोला ना ड्राइविंग लिबरेट्स वुमेन, वो मतलब मैंने पहले कभी नहीं सुना ये वाला जुमला, बट आपने बोला है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. तो आई जस्ट वांट टू मेंशन समथिंग कि देयर इज़ अ कज़न ऑफ माइन, ठीक है, बड़ी है मुझसे काफ़ी, तो शी इज़ लाइक क्लोज टू मी, काफ़ी क्लोज टू मी ना. उनको मैं इतना बोलता हूँ गाड़ी सीख ले, इतना बोलता हूँ गाड़ी सीख ले, ठीक है, वो सीख भी रही है, नॉट गोना से, लेकिन वो डंडी बहुत मारती है. तो लिसन आज भी आपने मिस की होगी, आई एम प्रीटी श्योर. Her lessons, her driving lessons. Can I tell you a secret? I'm also afraid learning. Of learning? Yes. Why? So my sister's learned driving. She drives the car. I'm very fascinated seeing her driving the car, but I'm just afraid. So it's like सामने से ट्रक आ रहा होता है and I'm sitting right beside her. I'm like, ट्रक आ रहा है, you know, and then she makes fun of me. You guys, please don't do this. You, मतलब, बट ये तो वो है ना, एक रिस्पॉन्स है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा. पंगा यहाँ आता है कि जब वो बाजी जैसे हैं वो डंडियाँ मारती हैं, ठीक है, तो डंडियाँ मत मारें बाजी. कंटिन्यू, सॉरी. सो हम कहाँ पे थे? When it comes to your this driving liberates a woman वाली बात भी, I think हम टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, लेकिन it's a good thing to discuss. No worries, we have ample time. Specifically if it inspires another woman कि वो भी जाकर you know effort लगाएं, करें काम. So मैंने driving सीखी हुई, actually I've taken driving lessons. So wow, Kashan, I'm so proud of you. I'm so proud of myself. That's like one achievement anyone
whenever anyone says कि ड्राइविंग के बारे में मैं सबसे पहले यही मेंशन करती हूँ because you know this is a notable achievement for me कि I made the effort even though obstacles आए मैंने Yeah. effort किया कि ना मैं सीख लूँ फिर भी बट उसमें भी मेरे पीछे मेरी अम्मी का रोल ज़्यादा आता है कि शी वॉज द वन जिन्होंने इतना मुझे पुश फॉरवर्ड किया कि नहीं वो एक्चुअली मुझे लेके गई एक ड्राइविंग स्कूल पे एंड वहाँ पर देयर वाज दिस फीमेल इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट और उन्होंने ना फिर सिखाई थी एंड दैट फीमेल इंस्ट्रक्टर वाज वेरी यू नो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मैं बहुत तरह तरह की चीज़ें करती थी गाड़ी के साथ ना इस तरह जा रही है कुछ भी हो रहा है of course it was you know how driving lessons work right so the instructor has partial control of the car Yeah. सही है so obviously उसमें तो it was like a 12 days का course था 12 days में obviously by the 12th day I was driving like a pro but with her Really? Okay. Yeah. let's not forget that but there were times when I used to think oh ये मैं किस situation में आ गई हूँ ये क्या हो गया because वो मुझे ब्रिज पर ले जाती थी and I used to say ये अभी थोड़ी करना है ब्रिज पे थोड़ी जाना है हमें तो सीधा सीधा रोड पे चलाना है शी वाज टू बी लाइक अब तुम ब्रिज पे हो अब तुम करो अब कुछ नहीं कर अब सकते. कुछ नहीं कर सकती तुम व्हाट आर यू गोना डू बैक करोगी क्या गाड़ी को तो मैं बस यही बात कहना चाह रही हूँ कि व्हेन इट कम्स टू सौदा ने जैसे कहा कि ना इट स्केयर्स हर लिटिल बिट तो ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आती है व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड्स एज वेल इन दिस जनरेशन आई थिंक देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसोसिएशन प्रेजेंट इनसाइड अस सो वी डू डिसोसिएट अ लॉट इवन व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन we're doing anything walking on the road as well तो जाहिर सी बात है वो फैक्टर हमारी ड्राइविंग में भी प्ले करता है कि यू नो बिफोर लर्निंग ड्राइविंग या बिफोर स्टार्टिंग टू ड्राइव परमानेंटली यू डू थिंक कि यार व्हाट इफ मैं डिसोसिएट कर जाऊँ और and there is one more thing also कि जब आप रोड पे निकलते हो ना ड्राइव करते हो आई सीन माय सिस्टर ड्राइविंग यू नो तो कभी आप स्पीड टेस्ट कर दो ना तो पीछे वालों के ना ईगो बहुत हर्ट हो जाता है वो फिर ये Yeah. सोचना शुरू कर देते हो माय गॉड ये मेरे से पहले क्यों निकली यू नो Yeah. I've heard that a lot too. एंड देन अगर आप कभी कट गलत मार लो या आप कहीं से उतर रहे हो आप कोई आपको देख रहा है एंड सॉरी बट देयर आर मेल्स हु एक्चुअली आई सी देम कि वो थोड़ी गाड़ी पीछे कर लेते हैं कि लड़की उतार रही है गाड़ी लगा नहीं दे रही यू नो तो Yeah. इट्स तो ये थोड़ा ना फैक्टर है आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मलाइज्ड इन द Yeah. सोसाइटी और बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मतलब लड़की चला रही है नहीं इसके करीब नहीं चलानी और आई गाड़ी फील वो इस तरह का जो एटीट्यूड होता है ना वो फिर कहीं ना कहीं जिस बंदे के लिए होता है ना उसकी भी उसमें रिफ्लेक्ट कर जाता है क्योंकि अगर आपको हर कोई देख के डर रहा है पीछे कर रहा है तो यूर गोना थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग या Yeah. वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ होगा अगर आपको किसी को Exactly. कॉन्फिडेंट देना है तो यू विल हैव टू फील कॉन्फिडेंट इन देम पहले ना अब उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बट कुछ हो नहीं सकता जो बात है लाइक अगर हम लाइक कितने करोड़ों की आवाम है 1000 लोग भी इस तरह कर लें तो शायद ही कोई चीज़ है मुझे तो होप नहीं है ठीक है बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी लेकिन वन पर्सन मेक्स अ डिफरेंस यू नो चेंज होता है वो पर्सन टू पर्सन या वो अपने क्लोज में आ जाएगा लेकिन पूरे एज अ नेशन तो नहीं आएगा ना नहीं पूरे एज अ नेशन टू थिंक कि the change gets implemented in the entire world as well that's very idealistic या मेक्स and also we need and to make a smaller change we need this whole generation to sacrifice to make that change you know या it does नॉट द होल जनरेशन आई थिंक मल्टीपल जनरेशन आफ्टर तो जाके सही जाएगा I don't know if they're very willing to make a change. Maybe the upcoming generations the might. current generation isn't too me The current generation of no one is willing to compromise for a better future everyone says भाड़ में जा जनता अपना काम करता ये एटीट्यूड मेजॉरिटी पाकिस्तानियों का है आई हैवंट बीन बाहर इतना कि मैं लोगों से इंटरेक्ट किया हो ठीक है तो आई कांट से अबाउट द वर्ल्ड बट हमारा वही जैसे कल मुक्सिब भाई बोल रहे थे कि एज अ पाकिस्तानी अब उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है मुक्सिब भाई इज़ आवर CEO okay उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वो पूरी दुनिया घूमे मेजॉरिटी उन्होंने ये बात बोली कि पाकिस्तानियों का सबसे मतलब मशगूल होता है आई डोंट नो सबसे शौकिया काम ये है कि वो दूसरों को पीछे खींचते हैं ठीक है that's a fact तो ये फैक्ट है और मैं मज़े की बात बोलूँ आप दो है ना मैं एक एक करके एक पाकिस्तानी को ये दो जगह पे बिठा दूँ ना सब ये बोलेंगे दैट्स अ फैक्ट ठीक है सब यही बोलेंगे यार कि हाँ बुराइयां तो बहुत है दरवाजे से निकलते सब ये करेंगे ठीक है और ये बात मुझसे नहीं बोली थी कि हम सब में टेंडेंसी है even होता ये है कि आई हैव सीन केसेस जो लोग बाहर रह रहे होते हैं दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस यू नो सिग्नल नहीं तोड़ेंगे कचरा आपके घर के बाहर नहीं फेंकेंगे गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेंगे बिकॉज दे आर अफ्रेड ना कि अरे मेरे पे फाइन लग जाएगा मुझ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा बट द मिनट दे एंटर पाकिस्तान दे स्टार्ट
रूमिंग, मतलब आप Yeah, रूल्स तोड़ना शुरू कर देंगे। बस बस ठीक है ना, पाकिस्तान यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा। I have a ditto same example. We were in Malaysia. हम कोलालमपुर पे घूम रहे थे and हमने कोक पी थी. I'm not gonna name the other person or whoever it was. अब वो हाथ में कोक थी, ठीक है, अब पेप्सी का डब्बा बोतल थी जिस पे ब्रांडिंग भी होती है, उन्होंने पी ली, ठीक है, और उन्होंने पकड़ ली। मैंने बोला कि यार डस्टबिन फेंक देना कहीं पे भी, तो बोलते नहीं पकड़ लो। मैंने बोला आपने पाकिस्तान में तो कभी ऐसे नहीं किया। व्हेन वी वर हियर इन कराची, तो उसके कुछ ईयर सब बाद गाड़ी से बोतल पकड़ी बाहर, एंड आई मेंशनड इट, ठीक है, एंड द पर्सन वाज लाइक यार खैर है, कचरा है तो। अरे मेरे कज़न बताते हैं, ही वेंट टू कोरिया फॉर सम बिजनेस मीटिंग, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे गलती से क्या हुआ कि कचरा बाहर फेंक दिया। अच्छा, जब बाहर फेंका ना तो वहाँ पे देयर वाज अ गाय मतलब गुजर रहे थे वहाँ से, उन्होंने क्या किया, कचरा उठाया, उस गाड़ी को रोका और बोला कि यार इसको डस्टबिन में डाल दो। डैंग, कितना एम्बैरेसिंग होगा ये, है ना? लेकिन उसके बाद आप कभी ऐसी गलती नहीं करो। या क्योंकि आपको पता है कोई चार लोग हैं, कोई भी कर ये लेगा। चीज़ पाकिस्तान में करो तो फिर नो वाज गुड। या अगर आप पाकिस्तान में एक पहले फेंकोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई बंदा जाके आपको बोल देता है तो उस बंदे की शामत है, शामत सबने है। उसकी पैंटी लगानी है। Yes, Yes. that's the point. मतलब हम क्रिटिसिज्म भी नहीं सही से ले सकते ना, हम हर चीज़ That's को the ईगो problem. पे ले लेते हैं। Yes. There's like जो बहुत टिपिकल मतलब स्टीरियोटिपिकली मशहूर है चीज़, दैट्स मेल ईगो, उसके बाद आती है पाकिस्तानी ego, ठीक है, वो हर चीज़ में है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोना से एनीथिंग कंट्रोवर्शियल हियर, बट Yeah. यहाँ पे ईगो है और ये बॉर्डर क्रॉस करते ख़त्म हो जाती है। Ah, Yeah, because I think वहाँ पर फिर when you're held accountable for this stuff, no, accountability is something that makes people stop doing a lot of things that they have internalized and they have normalized कि ये ठीक है, कचरा फेंकना मसला नहीं है, हम फेंक सकते हैं। लेकिन when you see कि हाँ भाई यहाँ पर किसी ने देखकर बोलना है कि तुम क्या कर रहे हो, what are you Yeah. doing? हाँ, जब अकाउंटेबिलिटी आ जाए ना क्वेश्चन में, तब आप बहुत चीज़ें छोड़ देते हो। जब आप किसी चीज़ के बारे में अकाउंटेबल ही नहीं ठहराए जाओगे, तो फिर शायद झूठ इसीलिए इतना आसान है क्योंकि झूठ के लिए अकाउंटेबल खड़ाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत आसान है। आई थिंक देयर वाज वन आर्ग्यूमेंट वन डिस्कशन दैट आई वाज हैविंग इन आवर ऑफिस एज वेल। अभी मैं एक्चुअली बात करती हुई आई हूँ कि अबाउट women sitting in an environment and the men around them, they're saying some sort of कोई ना कोई फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, रैश वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई सेड कि कोशिश करो कि जब मैं बैठी हूँ एटलीस्ट वहाँ तब नहीं बोलो, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं कम्प्लीटली तो इस चीज़ को नहीं स्टॉप कर सकती, एंड आई फील लाइक कि आप लोगों में इतना नॉर्मलाइज्ड हुआ हुआ है कि इट्स फ्रैंक फॉर यू, एंड इफ़ आई कम अप एंड आई से कि यार मेरे सामने गाली नहीं दो, तो देन आई एम समवन लाइक आई एक डील ब्रेकर होगा आपके लिए। आई एम नॉट फन एनी मोर, यू डोंट लाइक मी एनी मोर देन, तो जस्ट ट्राई कि ना अभी नहीं बोलो। नहीं, लेकिन that also does not change ना, मतलब if you say such kind of stuff and stop that person right there, then they start saying कि this is how we are. I mean, if you can't with us, deal with Yeah, I us. have heard that. Yeah, Otherwise, it's your search से change कर लो, and you'll be like, dude. मतलब you tell him it's not. That's what I was coming up to. I was reading this book आज ही, उसमें ना ये बात mention थी that there was some professors, they conducted this experiment, or what would you say, like an examination on their students to see कि women participation कितनी है उनके school में. So what they saw was कि women were very held back, they were very hesitant about coming forward, and one thing that they noticed was कि women were always like कि ना अगर हम आगे आएंगे तो these men, they have a lot, not men, boys they were, so they have like perhaps ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, अगर उनका दिल चाहेगा वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, they can be rude to us the way that they are rude to each other as well. So what the professors did, उसमें ये लिखा हुआ था, there was like a series of steps that they did to stop that, and one of this was कि holding them accountable for it. So that's the thing. मैं यही बात को अपने कहना चाहूँगी कि while I stand up and I say I am part of a women in tech community, there are times कि मैं खुद भी ये वाली चीज़ें गलतियाँ करती हूँ, like saying कि ना अभी के लिए नहीं करो और बाद में कर लेना. Yeah, It is wrong. I know कि at the back of my head, but when it's when stuff like this occurs, अगर आप है ना उसको completely accountable नहीं हेल्ड करवाते हो उस शख्स को कि ना देखो you're doing something wrong. It's not कि मुझे बुरा लग रहा है, वो चीज़ ही गलत है actually. तो ये आप very true. आप गाली मेरे सामने दे रहे हो, किसी लड़के को भी दे रहे हो, there is this thing normalized कि सारे लड़के जो है ना
वो उनको नॉर्मल लगती है ये बात, सारे लड़कों को नहीं अच्छी लगती. देयर इज आई हैव actually, not just met, I have, when I've personally sat and talked to a man or like a guy, and I've said ki, are you okay with this? Don't you think this is like too harsh? कि एक बंदी बैठी है उसके सामने, वो तुम्हें कुछ भी कह रहा है. Not just बंदी, आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं उसके सामने, आपको कुछ भी कहा जा रहा है. तो don't you think it's harsh, even if it's in a joking manner? तो they say कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं प्रेफर नहीं करता इस चीज़ को. तो it's not just about women, it's some stuff that somehow औरतों को बुरी लगती है वो बातें. हम ये बात नोटिस नहीं करते कि वो कभी बार मर्दों को भी बुरी लग रही है. It's basic etiquette, please. Yeah, it's basic etiquette जो कि Even corporate culture में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है. It's so normalized वहाँ पे भी कि आप बैठे हुए हैं, और किसी को गाली दे दी. मतलब corporate culture corporate ही रखने के लिए you have to be very well mannered, Yeah. That's what we're taught in our universities and schools. But then as soon as you enter the corporate world, you're like, You see, yeah, तो ये बिल्कुल ही हो जाता 60 है. degree change है भाई यहाँ. Yeah. And then the point is कि nobody's trying to change that also. So that's what I said ना कि when you try to change it, or like of course वो तो एक saying आ जाती है ना, फिर हमारे अम्मा अब्बा पुराने ज़माने से लेके आते हैं ना, बेटा आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आपको अपने आप को बदलना पड़ता है. फिर आप एंड में क्या Compromise कर करते लो, हैं, कुछ आप एंड में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या आप उठ के उस जगह से चले जाते हैं कि भाई नहीं बैठना ही नहीं है यहाँ पे. सो दैट्स द फैक्ट. Yeah. मतलब कभी कभार कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लग रहा होता, फिर भी वो दे टेक इट ऑन, उन पे ऑप्शन नहीं है. या बट आई फील कि अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा ना, तो देन अगेन भले रेप्रिकॉशंस कुछ भी हो, और आई डोंट थिंक सो कोई रेप्रिकॉशंस होंगे, यू शुड कॉल इट आउट. ठीक है, बिकॉज अब एक ट्रेंड है कि गाइस लाफ एट गर्ल्स बहुत ज़्यादा ना, कोई मिसोजिनिस्ट जोक पे या समथिंग कि हाँ हाँ हाँ, एंड फिर किसी गैदरिंग में लड़की भी होगी ना, वो तब भी करेंगे. ठीक है, और वो लड़कियां उनको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है, वो हंस देंगी, हाँ हाँ चलो, बंदा बोले क्या इसके मुँह लगू दफ़ा करो, वो हाँ 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 ना बहुत चढ़ावा दे देता है सामने वाले को. ठीक है, और आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट. मैं अगर सिर्फ अपनी भी बताऊँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँगा, था, मुझे पता है इस तरह से जा पे थे. आई वॉज कॉल्ड आउट बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ सीनियर, ठीक है, आपकी बैचमेट, एंड माई कज़न, वही बाजी इनका ड्राइविंग वाला. उन्होंने मुझे समझाया बैठ के, बोलती हैं यार इस तरह की आदत दोस्तों में चलेगी ना, मैं भी चल जाती हो, कल को दोस्तों के बाहर भी कोई बैठा होगा, आदत मुंह से निकलेगी, बात बुरी लगेगी, कल को यू विल हैव अ स्पाउस, ये मजाकिया तौर पे आप उसे बोलोगे बुरा लगेगा. ये लड़के नहीं समझते. लाइक इट्स बिन 6 or 7 months, उसके बाद से मैंने आज तक नहीं किया. मैं ऑफिस में भी मना करता हूँ लोगों को कि नहीं करो. ठीक है, और या दैट्स व्हेन आई लुक एट इट, तो मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा. ठीक है, मैंने वो अब कर रहा हूँ जो कि मुझे डे 1 से करना चाहिए था. So वो नहीं होता है एक लड़का कर रहा है तो वाओ फैक्टर ऐड हो जाता है, oh my god you're doing a big thing, वो अभी बात हो गई कि वो लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के नहीं करेंगे. लेकिन जिस दिन लड़के शुरू कर देते हैं उसमें सब वो नहीं होता, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस लगना शुरू हो जाता है, सब लाइक ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं, oh my god ये देखो यार आज घर का काम कर रहे हो, oh my god. और लड़कियां जो काम करके घर का काम कर रही है वो किसी को नहीं दिखता. वो तो मैंने भी एक दो अभी रिसेंटली खाने वगैरह बनाना स्टार्ट किए थे, कुकिंग. तो ठीक है, मैं बनाने के बाद स्टोरीज लगाता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोई भी चीज़ डिफरेंट होती है तो शेयर करो, अच्छा लगता है. तो वो फिर जो प्रेस मिलता है वो भी अच्छा लगता है. क्या कर सकते हैं आप? Because खाना पकाना is a skill itself, so Yeah. proud of मुझे तो मज़ा आता है. learning that. मैंने तो जस्ट फन फैक्ट, इंटर के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं करना था, मुझे क्यूलिनरी आर्ट पढ़ना था. ठीक है, और मेरे घर वालों ने बोला था भाई क्या करोगे जिंदगी में, आ गया मतलब चलो फिर कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं. लिया जाता है ना, उसके बाद लोगों का क्या क्या पोटेंशियल होता है जो नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है हमारे ना करियर्स में ना करियर काउंसलिंग भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. देयर आर लॉट ऑफ न्यू फील्ड्स दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बट जब आप यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाते हैं ना, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड. अच्छा, अब जैसे द प्लेस दैट आई वर्क, वहाँ पे एक्चुअल साइंसेस एक फील्ड है, राइट. सो वी यूज्ड टू वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्ट्स, राइट. सो दैट इज़ वेयर आई लर्न कि एक्चुअल साइंसेस भी एक फील्ड है. आई नो सबको किसी को पता होता है, आई मीन मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो जैसे एक है फिल्म मेकिंग या एक बहुत सारी फील्ड्स हैं ऐसी न्यू इंट्रोड्यूस्ड, राइट. बट हम उसको इतना इन्फीरियर रख के चल रहे होते हैं कि कोई भी ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब शो नहीं करा होता. अच्छा, आप जब आप स्कूल में होते ना तो आपको सिखाया जाता है डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ. आपको डॉक्टर और इंजीनियर से आगे की कहानी पता ही नहीं होती, या डॉक्टर इंजीनियर या मिलिट्री में चले जाओ. आजकल मतलब हमारे ज़माने में ये भी इंट्रोड्यूस है, ज़माना बहुत बुढ़ापा नहीं आया है. खैर, तो साइकोलॉजी एक फील्ड होती है. इवन उस टाइम पे सोशल साइंसेस को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे पता नहीं होता कि एक अजीब सी फील्ड में बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, डम होते हैं वो ये कर लेते हैं. हालांकि आई थिंक दैट फील्ड मेक्स अप योर माइंड, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलता है उसमें, बिकॉज यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसमें साइकोलॉजी है, दूसरी चीज़ें हैं, बट
नहीं, लोग उसको कंसिडर ही नहीं करते you know? लेकिन पता है आपकी बात आपकी जगह बहुत ठीक है, लेकिन कि हमें हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट जहाँ पे हमारे एज अ नेशन या एज अ सोसाइटी बात आती है ना, वो मेरा ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज़ टू वर्क टू अर्न, राइट, एंड एवरीवन डज। हमारी सोसाइटी हमें ये लग्जरी नहीं देती कि हम कुछ भी मुँह उठा के कर लें या हम वो कर लें जो हमें मतलब दिल करता है, ठीक है। Exactly. So you're saying ना कि culinary arts करना था मुझे, मैं या क्या वाकई में नहीं कुछ करता आपको अभी। पता है, सो आई वेंट टू यूरोप, पेरिस गई थी मैं। वहाँ पे वेटर की जॉब होती है ना, दैट्स कंसिडर्ड एज अ वेरी ग्लोरिफाइड जॉब, सो इट्स लाइक वेरी रिस्पेक्टेबल देयर। वहाँ पे ना आप बड़ा रिस्पेक्टफुली उसकी पढ़ाई होती है, और अच्छा आप उससे रेस्टोरेंट में रखते हो तो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से आप वेटर से बात करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ हम बोलते हैं ना, इधर आओ, ऐसे बात नहीं कर सकते, यहाँ आपको तो- एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी पड़ती है। तो हम ऐसे ट्रेन थे ना यहाँ पे, तो वहाँ गए, माई कज़न लिव्स इन जर्मनी, तो उसने मुझे बोला कि सवदा वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल हियर बिकॉज ये लोग बुरा मान जाएंगे नो। तो उनका भी एक रिस्पेक्ट फैक्टर है। हमारे यहाँ पे इस जॉब को रिस्पेक्टेबल मानते ही नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा। बस वो ये आप जाओगे, आप जलील कर दोगे 2 मिनट में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर प्रोफेशन को हम रिस्पेक्ट करें। आई फील बात फिर वो ईगो की आ जाती है कि आप हाँ, हर चीज़ को makes sense. सुपीरियर और इन्फीरियर में लेके चले Even, जाओगे तो you know what, when I traveled to Europe, वहाँ पे एक मेड थी ना, उसकी भी बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब थी। या She used to wear gloves and came in with her own attitude, and she walked in and मैंने- cleaned the house and walked out, and I was like, wow. आपने जुनेद अकरम को जानती हैं आप? वो उसकी एक स्टोरी थी, वो दिखा रहा था कि ये मेरी मेड है, ठीक है, वो बर्तन धो रही थी, सही है, और वो बाहर गाड़ी दिखाता है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट ब्रांड नहीं याद, बट इट वाज अ प्रॉपर कार ना, कि मतलब मैं तो पागल भी हो जाऊंगा, तो मुझे पता है मैं पाकिस्तान में रह के नहीं अफोर्ड कर सकता। वो बोलता है ये इस पे आई है, ठीक है, बोलता है मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, ये इस पे आई है, ये बर्तन धो के चली जाएगी, Same. ठीक है, Swift में आई थी। ठीक है। I was like, dude. सिर्फ 40 लाख की है इस वक्त वो पाकिस्तान में। स्विफ्ट में आई थी, उसके पास ईयरपॉड्स थे, आई वॉच थी, मतलब क्या कुछ नहीं था उसके पास। मतलब इट्स नॉट अबाउट द एसेट्स शी हैड, बट Yeah, द it's about पॉइंट the- इज कि इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट दे हैव। और इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटीज कि आप वो करो जो आपका दिल करता है, एंड Exactly. you'll still be a respectable person in the Yes, society. exactly. यहाँ आप नहीं हो सकते। guys have seen like those reels on Instagram, by the way. मैं तो बहुत ज़्यादा Instagram की गुलाम हूँ, so so there are reels where women and men, they are very passionately pursuing this specific profession of cleaning, Okay. and they उसको पूरा broadcast भी करते हैं, उस पे reels भी बनाते हैं, and they do it very passionately. And I being a CS graduate, I was looking like, what is going on? ये काम कर रहे हैं, so ये वाला फिर वो आ जाता है perspective कि ये काम कर रहे हैं. Hmm. It's also about the respect that we have for those works. Yes. सही है, तो हमारी रिस्पेक्ट हम लोगों के पास एक्चुअली नहीं है। हम लोग एक्चुअली इन चीज़ों को बहुत कमतर Even with the entrepreneurship also, there I've seen Yeah. girls, like girls नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील करते हैं, यार हमारे पास, हम ना जॉब नहीं कर रहे, entrepreneurship कर रहे हैं, अच्छा अभी छोटा सा बिजनेस शुरू किया, सबको बताऊँ कैसे कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। Yeah. मैं एक स्टॉल लगाया है, उस पे मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। यू डूइंग योर ओन थिंग डूड, मतलब Yeah. यू हैव योर ओन टाइम इन कंट्रोल। आई मीन यू डूइंग द बेस्ट थिंग। Yeah. यू डोंट हैव टू wake up 9 in the morning and like मेरी सैलरी कट जाएगी तो मैं 9 बजे जाऊँ। इट्स अप टू यू, यू डू इट, कितना कमाया वापसी आ गया। जबकि मोस्टली इस सॉरी बात कर रहा हूँ, आप प्रोबेबली 9 से पहले जाग रहे हो और सो भी लेट रहे हो, क्योंकि यू गॉट टू मेक समथिंग। आप वो ऑफ कोर्स दैट्स लेकिन लोगों ने प्रेजेंट, हाँ, मतलब That's यू subjective. आर योर ओन बॉस, आई मीन राइट, बट उसमें भी लोग झिझकते हैं बताते हुए कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर। लाइक dude, you're doing something yeah. for yourself, and that's a very braver part that you're doing it, right? मतलब मैं बस सोच ही सकती हूँ बस। Let's move back to the community that you guys both have a significant role in. मुझे नहीं पता कि इसका क्या रोल है। आपने बताया मार्केटिंग में लीड है आप, आपका मुझे नहीं याद। She's the chapter lead. I mean, you should Yeah, she is the introduce her chapter with lead, that, but like मैं एक इंट्रो दे रहा था कि she's मुझे नहीं, my boss basically. मुझे याद है कि शी इज कराची की लीड, बट मैं वो दे रहा था, मुझे आपका नहीं आशी लाइक आई एम दिस, लाइक एक अच्छा इंट्रो हो जाता ना, ठीक है। भरोसा रखो, मुझे याद था कशिश का क्या रोल है। hate out that After the podcast, I don't guarantee what happens with मैं तो भाग जाऊंगा इधर पर। Okay, so when since Mubashir is mentioning the community that we manage, so the community that we manage, its name is Pakistani Women in Computing, and PIVIC. short form हम कहते हैं PIVIC, PWIC. काफी लोग PWIC कहते हैं, हम PIVIC कह देते हैं.
मैं PWIC बोलता या PWIC था, काफी बड़ा लगता है, काफी लोग है ना, दे टेक परमिशन फ्रॉम मी ऑफ्टन कि पिविक कह दे, मैं हाँ। हाँ यार कह दो. Hmm. So yeah, पिविक is also shorter. So okay, so what is पिविक, कहाँ से आ रही है, क्या मतलब है, क्या ये होता क्या है, उसके लिए I would like to introduce like communities first. कि communities क्या होती हैं टेक में. Communities are basically like a group of people that जो इस बात पर अग्री करते हैं कि ना they want to make an impact amongst a group of people. Hmm. So when it comes to communities in tech, we have groups of people जो different events organize करवाते हैं, different seminars organize करवाते हैं, any sort of activity that is in some way communicating some sort of a message to the people in tech, or they are creating learning opportunities. Yeah, making an impact. When it comes to making an impact, I think we need to know कि communities क्या impact create करती हैं. First and foremost, the first impact that they create is of networking. So बहुत कम chance होता है when it comes to university students. Networking क्या होती है, सबके सर पे से गुजर जाता है networking. कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था. Sorry, continue. Okay, so उस networking की क्या importance होती है, that is something you can only know if you get to network with someone. कि ना जब आपको किसी से network करने को मिलता है ना, आप obviously humans are social animals वाली बात हो गई. आप है ना अकेले रहकर एक चीज़ नहीं कर सकते. Even the people who seem like they are self-made or they are completely built on their own, they have had help from someone who is more experienced, जिसको ज़्यादा पता है, जिसके पास ज़्यादा exposure है. तो that is about communities. So हमारे कराची में काफ़ी सारी communities हैं and they cater to a lot of different things. आप लोगों को Google के बारे में पता होगा, Google की अपनी community है, Microsoft की अपनी community है, there are other GitHub की for example, Notion की. So if you look at all of these communities, they all cater to one thing. What are they doing? They're trying to जो specific company है उसको promote करने के लिए होती है. When we go over to Google की communities या Microsoft की communities, उन सब में जो भी उनकी events या activities होती है, उनके अंदर वो लोग अपने अपने products को. बिल्कुल ऐसा ही है. When it comes to Pakistani women in computing, the main aim and the main vision over here is related to women in tech specifically. कि हमें क्या करना है, हमें empower करना है women in tech को, हमें उनको opportunities provide करनी है ऐसी जिनसे वो है ना learn कर सके, वो एक दूसरे से connect कर सके और वो grow कर सके. So it's not just us specific. I would also like to highlight other women in tech communities. There are other women in tech communities. There is Women in Tech PK, which was established by Faiza Yusuf. वो भी हमारी I think in the tech industry she's a big name by the way. But I think we only get to know these big names related to communities if we are in the communities ourselves. मेरे बारे में भी किसी को इतना नहीं पता होता unless वो लोग मुझसे मिलते हैं and they're like Kashish Fatma is someone. दूर से तो डर लगता है ना सबको आपसे. मैंने नहीं बोला, ये मैंने बोला था. सही. Well, so the PIVIC itself was formed by by a group of women who lived outside of Pakistan. So the thing was, अब आप कह रहे हैं Pakistani women in computing, what it's saying is कि it's a I'm sorry. No worries. Okay, so it's a community of women and they hail from all around the world. So when it comes to different communities in Pakistan या फिर कराची, तो उनमें women in tech वाली communities में ये है कि वो लोग सिर्फ फिर कराची की ही women उसमें exist करती हैं या पाकिस्तान की women exist करती हैं. With Pakistani women in computing, what's happening is कि there are multiple women across the world who are Pakistani and they are working in tech. So आपको पता है tech के बारे में कि tech एक ऐसी industry कि you're not just limited to Pakistan, आपकी opportunities बाहर अक्सर मिल जाती हैं. And मिलती है तो we just we run away from this country. So that's the thing कि Pakistani women in computing was first initialized as a group of women who were mainly based out of Pakistan. Slowly करके वो लोग पाकिस्तान में उन्होंने अपने first chapters इस तरह introduce की कि chapters are basically cities में community के subparts. Yeah. So when it comes to the Karachi chapter, I think it was launched back in 2019 or maybe it was launched back in 2019
and the first Karachi chapter lead was हमारी ही यूनिवर्सिटी की सीनियर ईशा. ओके, तो आप कैसे बनी फिर लीड? मैं कैसे बनी? या दैट्स लाइक मैं खुद ये बात क्वेश्चन करती हूँ कि मैं कैसे बनी, मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई. व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी कोविड के टाइम पर मेरे पास अचानक से ना ईशा का मैसेज आया था कि वुड यू वांट टू बी कंटेंट co-lead at Pivot. And I used to be very in on content teams in university. So I don't know why, somehow I became the go-to person for content. By the end of university, I was the go-to person for content. So इस चीज़ को इतना और मैं इस बात से इतनी इम्प्रेस नहीं थी. मैं अपने अंदर ही इस चीज़ को बहुत ही अच्छी स्किल नहीं कंसिडर करती. I used to think this is just going on the side. Let it be, जाने दो. And I will come back to that कि क्यों ये चीज़ गलत थी, why I shouldn't have done that. Isha contacted me. She said, would you like to be on the content team? I said, sure, why not? Content teams may be अच्छी नहीं होंगी, लेकिन content co-lead in a community that is, international, that sounds good. So I said yes to that. And we started off, उस वक्त हम लोग काफ़ी छोटी टीम थी. उस वक्त सिर्फ हमारी स्टार्ट में तो छोटी ही होती है. स्टार्ट में इसलिए भी मैं बताना चाहूँगी बिकॉज अब बड़ी हो गई है. ऑल तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब बड़ी हो जाएगी. तो उस वक्त देयर वाज ओनली द कोर टीम. सो द कोर टीम कंसिस्टेड ऑफ ओनली लीड्स फॉर द डिफरेंट टीम्स एंड देयर वर नो टीम्स अंडर दोज लीड्स. देयर वाज जस्ट लीड्स. जैसे ईशा वाज द लीड, आई वाज द कंटेंट को लीड, और मेरे ऊपर भी एक लीड थी जो कंटेंट को लीड कर रही थी. So that is how we started working. And during that time, I just wrote emails. I wrote captions for social media posts. I also wrote articles. Okay. And GPT नहीं आया था तब तक. yeah, GPT नहीं आया था. Just think about it. Like content was an actual thing, I Who doesn't? जो नहीं लेता वो पागल है. But Like use it to empower yourself. one thing, like since I had been writing all this time, तो मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ जाता है कि GPT से जनरेटेड कंटेंट को बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि दिस इज जनरेटेड थ्रू GPT. एंड व्हेनेवर माय कंटेंट टीम कम्स अप विद कैप्शंस लाइक दोस, आई से कि फिर मुझे टीम बनाने की ज़रूरत ही क्या थी. बहुत क्लियर पैटर्न्स होते हैं उसके, मतलब AI जनरेटेड कंटेंट की, और उसको बहुत ज़्यादा आपको खुद रिफैक्टर करना पड़ता है. मतलब नहीं कर रहे तो फिर वो अलग बात है. या एग्जैक्टली. तो देयर आर एक्सटेंट्स. वैसे ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूँ कि नहीं सब कुछ ही तुम लोग खुद लिखना है स्क्रैच से. आई अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव मोर अदर ऑक्यूपेंसीज एट इन देयर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको, और फिर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, सिंस इट्स अ कम्युनिटी, तो आई डोंट वांट टू प्रेशराइज एनीवन इनटू डूइंग समथिंग. आई वांट देम टू डू इट फ्रॉम द अपनी खुशी से करें. हम वॉलंटियर खुद करें, अपनी खुशी से करें, पैशन से करें, ताकि कोई भी उसका एंड रिजल्ट आए ना तो उनको अच्छा लगे कि मैंने ये अपनी मेहनत से किया था. Makes sense. So where was I? I think I was talking about how my own journey. So 2019 के बाद, I think 2020 and 2021, I think for some time, I don't remember the years properly, for some time I remained the content co-lead, and then I was offered the position of content lead because the entire hierarchy was, revised. Okay. So since the content lead herself stepped down, so I had to go over and become the content lead. That was in 2020. I would say that was in 2022 or 2023. Okay, it's recent. Yeah, it's quite recent because मैं अभी recently ही Pivot chapter lead बनी हूँ. So when I was the content lead, अच्छा, I would like to mention this thing कि during that entire time, it was the efforts, not the efforts, the activities made by Pivot or organized by Pivot were very less. So हो जाती थी, एक आध इवेंट हो गया, हमने करवा दिया, एंड वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो एक्चुअली वो इवेंट्स ना बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे एंड दे यूज्ड टू इम्पैक्ट पीपल एज वेल. बहुत अच्छा उनका रोल होता. तो ऐसा नहीं होता था कि अगर वो एक्टिविटीज़ कम होती थी तो वो किसी भी तरीके से यूजफुल भी नहीं होती थी. बट इट वॉज जस्ट कि देयर वाजंट एनी प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर इट. Also properly, there wasn't any promotions भी नहीं हो रही होंगी क्योंकि I don't know if Ume was there या नहीं, क्योंकि she's a, मतलब marketing तो ये देख रही होंगी. अभी I recently joined actually 6 months. Oh, okay. coming to that point कि जो मेरी टीम है वो कैसे आई है. Because मेरी टीम consists of a lot of people that I knew personally or through someone. So I think
by the time 2023 was ending, I had some responsibilities for content myself. But it used to get so difficult to do all of that stuff on my own. कि कोई article लिखना है तो वो मुझे खुद लिखना है, Mm-hmm. कोई caption लिखना है मुझे खुद लिखना है. And during that time, during 2023, I was also struggling to find a job. I wasn't, not the best student, not the very best at academics either. So I say that वैसे क्योंकि I understand कि मेरी struggles एक specific point से आ रही थी. And now I try my best to, provide that sort of support to other people कि वो लोग उस चीज़ से ना गुजरे. Yeah. So when 2023 में Isha told me that she would be leaving Pivik and that she would like to propose me as the chapter lead for Pivik Karachi. That was the point. I was like, oh, this is not going right. This shouldn't be happening. Imagine मैं content team को अकेला संभाल रही हूँ. How will I manage the entire thing by myself? How will I do it? I am not capable. That's not me. क्यों ले रही हो अपने ऊपर? तुम ये pressure नहीं ले सकती. Yeah, and I'm at a similar position with Elastic Connection because we're not that mature right now, but हर चीज़ अभी मुझे देखनी पड़ती है तो जॉब के साथ मुश्किल हो जाता है. But फिर कंटिन्यू आप बताएं फिर. मेरे अंदर बहुत मुझे बहुत डर लग गया था. I was like, मैं अगर नहीं भी कहूँगी तो that just means कि I am backing off, I'm backing out. और फिर during university as well, I was in this society named ACMW. उसमें भी मुझे काफ़ी सारे ideas आए थे जो मुझे implement करने थे. But I was always, the thing was कि मैं content lead होती थी. तो content lead जो होता है ना societies events में, उसका as such part होता है, but only till writing content and delegating content, किसी तरह की content team manage करना. So what happened was कि I just thought कि अगर मैं ना इस चीज़ को अपने अंदर से निकालूंगी नहीं, I had this a little bit of I had all of this energy inside me. I realized this after while I was doing my first job कि I had all this energy inside me जिसको मुझे थोड़ा सा catharsis करना था. Energy थी. Okay. I'm telling you, the thing was in university, I used to look at different initiatives that societies and communities used to, or events used to take. तो उसमें मुझे यही दिखता था कि ना सब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं और ना वो लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है, उनको किसी तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, उनको किसी तरह की लर्निंग हो रही है. And I was very intrigued by societies like GDSC and ACM. तो उस वजह से ना मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ रहते थे, मैं उनको लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी. When Isha proposed this idea कि I go and be the chapter lead, मैंने कहा कि कशिश, what, maybe ये वाला आइडिया तुम इम्प्लीमेंट कर देना, तो it's gonna make a difference. Just think about it. ये जब आप लीड बनी उसके बाद? नहीं, जब उन्होंने प्रपोज किया. ओह, तो आपने पहले ही सोच लिया कि ये करना है. क्या बहुत आइडियाज होते हैं. So that's even now if you ask Sauda as well, I'm often मैं काफ़ी सारे आइडियाज़ लेकर आ रही होती हूँ, ये कर लेते हैं हम, ये कर लेते हैं, इस तरह ले आते हैं. तो मेरे पास उस वक्त भी कुछ आइडियाज़ थे. एंड आई सेड कि what, ज़्यादा शायद इस चीज़ को मैं क्यों सोच रही हूँ कि क्या होगा. आई शुड go into the situation, try to experience it myself, और फिर मैं देखूँ कि क्या होगा. अगर नहीं हो सकेगा, I'll back out, I'll say it's not manageable for me. लेकिन एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी अवेल तो करके देखें, राइट? अपॉर्चुनिटी अवेल करके तो देखो. So this was a very new पर्सपेक्टिव फॉर मी. पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर तो मेरे अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं थी. उस वक्त तो मैं फ़ौरन ही बैकआउट कर देती थी चीज़ों से. So I went into it. I started off उस वक्त there was an event going on in Jinnah University for Women. उसमें ऑलरेडी ना एक इवेंट चल रहा था, तो उसका जो कॉन्टैक्ट पर्सन और उसकी जो सारी चीज़ें थी ना, प्रोसेसेस, वो ईशा ने मुझे हैंड ओवर कर दी कि अब तुम डील करो इनसे. सही. डील करना शुरू किया. उससे पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस माई को लीड फॉर कराची चैप्टर, हु इज़ हरीम फारूक. Okay. And she was the president of ACMW in university in, I think, the year 2021 to 2022. Okay. But I think if I'm wrong, तो बता दे कोई यार. खैर है. So when I was asked कि co-lead किसको बनाना है, जाहिर सी बात है चैप्टर लीड अकेले तो नहीं आप संभाल सकती. co-lead का भी proposition आया था, तो मैंने कहा कि I can ask Hareem, I think, because
I know कि she has been at this position of a lead, तो I can ask her to come forward. मैंने हरीम से पूछा, Hareem said yes, sure, why not? So now it wasn't just me, it was Hareem as well. And not to lie, at that point, the previous entire core team had said कि हम जा रहे हैं. they were all leaving Pakistan. So if you're leaving Pakistan, na, you go and operate on a global level in the community. But if you're in Pakistan, then you can पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से. and it's very fair because जाहिर सी बात है आप वहाँ पर बैठे हो, आपकी टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, तो फिर आप Makes कराची sense, को है ना वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते हो. तो मैंने कहा सोचा कि यू नो व्हाट, यहाँ से अब मेरे पास बस एडवाइस लेवल तक की गाइडेंस होगी, लेकिन टू कम अप ऑन स्पॉट और टू बी प्रेजेंट ऑन साइट वो वाली मेरे पास हेल्प नहीं होगी. तो when I had Hareem with me, obviously we were good friends in university as well. अच्छी बातचीत थी उस वक्त. तो I think फिर we had also worked at in the same building once. तो उसकी वजह से दोस्ती भी अच्छी हो गई थी. तो the first event that we did together was Jinnah University for Women का एक event था. That was like a project, क्या कहते हैं, FYPs, और उनके अपने projects थे, उनकी exhibition थी. So yeah, I was forgetting the word exhibition. Okay. So ये ना exhibition थी, and we were as partners to that event, we were asked to bring in women personnel to judge. Okay. सही है. तो पैनल लेके जाना था आपको विमेन का. Yes. So that's like the main thing that communities do. वो लोग network करते हैं, उनको पता होता है कि इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है, सही, किसका क्या रोल है, किसकी कितनी स्किल है एक्चुअली. So why would I be going around and approaching Sauda? Because I was, noticing her. I was observing her. आप इनको जानती कहाँ से थी? We worked at FW together. Okay, okay, yeah. So for some time, I think 1 month max. And वहाँ पर I used to see कि she used to be very active with things. She's also on a lead level. So I used to see कि she's managing different stuff. So I was not aware कि ये marketing में इनकी कोई skill हो सकती. But मुझे ये ज़रूर पता था कि this girl Is capable enough to handle anything. Oh my God, thank you so much. हाँ. And considering the requirement that I had, I just went up to her. मैंने कहा, just shoot your shot. She's senior. People are scared of me. I'm also scared of people, by the way. So just so you know, अभी thinking में बहुत पता नहीं क्या. लोग समझते हैं आप इंट्रीगिंग हैं, आप समझते हैं लोग इंट्रीगिंग हैं. Intimidating, I think you. Yeah, it's an. Yeah, sorry. Oh, my bad. Intimidating. वो Spider-Man वाला भी है ना. Yeah, चल रहा है. Okay. So I went up to her and I said कि would you like to join our community and we work with this इस तरह करके मैंने उनको समझाया कि women in tech को हम लोग empower करना चाहते हैं. We want them to come forward. One thing I would like to highlight, मुबशिर, जब मैंने ये community में lead करना शुरू किया था ना, मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि I am actually empowering women. That was something I used to see. Okay. लेकिन impact दिखा नहीं था अभी. मुझे I wasn't feeling it. Yeah, I same. wasn't even thinking कि मैं ये कुछ कर रही हूँ and I'm doing it for women. I wasn't even aware, I think, of the struggles or the barriers that women faced because मैं फिर भी अपने initial phases of job में हूँ और मेरी थोड़ी सी ना उस वक्त thinking भी इस तरह नहीं थी जितनी mature हो गई है. तो it was हो गई है. something, I'm not sure, it will keep progressing. Yeah, नहीं, I was just me. Sorry. It's alright. So what I did, so I was saying कि उस वक्त मुझे यही होता था, बस मेरे मुंह से है ना ये एक वो निकलती थी, elevator pitch निकलती थी, Pakistani women in computing, Yeah. community of women in tech, hearing from all around the world, blah blah blah. जैसा करके बस मैं जब बोलना शुरू कर देती थी. And आहिस्ता आहिस्ता I noticed this thing that what I'm doing can actually make an impact. वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी है ना revelation थी. And that we can highlight by telling you that so basically हुआ ये था कि interesting fact ये भी है कि जब उन्होंने मुझे बोला कि आप marketing lead join करें एज ए, तो उन्होंने मुझे एक event में भी invite किया था. एक event हुआ था IBM Hackfest या Shark Tank module event था. Okay. यहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए mentor invite किया था कि आप एज ए mentor काम करें. तो I went there, started guiding people on how to go about with the pitches and stuff, तो उस point in time तक जो है वो एक imposter syndrome होता है ना आजकल बहुत ज़्यादा है
सब में ही होता है पेरेंट। हाँ ट्रू। तो उस वक्त शी इनवाइटेड मी, आई वाज लाइक, उस वक्त ना वो एक होता है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही लगे हुए होते हैं, तो आप इतना मतलब एक्स्ट्रा नहीं जा रहे होते इस टाइम। लाइक आई टोल्ड यू के कुछ करना था लेकिन टाइम नहीं होता था अपेरेंटली। या तो उस वक्त टाइम निकाल के फर्स्ट टाइम आप उतने टाइम बाद निकल रहे हैं बाहर की काम कर रहे हैं सारा, तो बहुत अच्छा लगा उस पॉइंट टाइम पे किया। वाओ, लाइक शी सेइंग एम्पावरमेंट, तो उस वक्त ऐसे एम्पावरमेंट से फील हो रहा था, ऐसा लगता है कि ओह फाइनली डूइंग समथिंग यार। सो उस वक्त बहुत अच्छा लगा कैसा इवेंट हो रहा है ये। फिर हमारा नेक्स्ट इवेंट हुआ था बिल्ड विद एआई, गूगल ने इवेंट कराया था बेसिकली। वहाँ पे भी हम मिले थे, वहाँ पे भी ऑफिशियली आई वाजंट ऑन बोर्ड बेसिकली, राइट। उस वक्त भी आई वाज टेकिंग डिसीजन इन माय माइंड, सो शी वाज एक्चुअली playing the tactics of inviting me to the event, so yeah. काफी पुश कर रही थी। Yeah, exactly. क्या Build with AI के event में तो another friend of mine invited me. She invited me to the वो Hackfest वाला event. वहाँ पे we were actually guiding people, mentorship दे रहे थे, बहुत मज़ा आया वाले event में भी। फिर ये वाला event जब हुआ तो उसमें she brought her team, जो actual woman थी जो participate करना चाहती थी, you know. सो वहाँ पे भी आई हैड रोल ऑफ मेंटोर, राइट। तो हम लोग उसमें ना आइडिया पिचिंग पे बात कर रहे थे, तो वी वर ऑल गाइडिंग टुगेदर। सो हरीम वाज देयर, देयर वर अदर वुमेन आल्सो अराउंड, और हम उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे गाइड कर रहे थे अपेरेंटली। तो जब उनको हम गाइड कर रहे थे तो उस पॉइंट इन टाइम पे दोज वुमेन वर वेरी, एक होता है ना आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, वो बार बार पे आके आपको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच आपने मुझे गाइड कर दिया। सो वहाँ पे आई कुड फील कि वो खाली 2 लड़कियां थी जो काम कर रही थी, उनकी तरफ कोई जा भी नहीं रहा था पेरेंट की। तो मतलब इट वाज जस्ट अस वुमेन स्टैंडिंग एंड गिविंग देम ऑल द मोटिवेशन, यस यू कैन डू इट, यू नो वाला सीन होता है, बिकॉज इट्स ऑल मेन अराउंड एंड इट्स जस्ट वुमेन वर्किंग। तो एक, और उनका प्रोजेक्ट भी बहुत वुमेन ओरिएंटेड था, बिकॉज दे वांटेड टू मेक आई थिंक कोई साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ विद प्रोजेक्ट था, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स बिकॉज देयर वर टू मेनी प्रोजेक्ट्स। तो हम जब गाइड कर रहे थे तो उस पॉइंट इन टाइम पे खड़े हुए थे, बात कर रहे थे ऐसी, तो उस पर शी ऑफर्ड, शी सेड कि यार अब मैंने शायद बोला था कि आई वांट टू जॉइन इन, अब मैं आना चाहती हूँ वो। या फिर जब वो अच्छा उस पर इसने मुझे बताया हाउ दे वर प्रोवाइडिंग मेंटोरशिप विद इन दी कम्युनिटी। लाइक वो जो गर्ल्स आई थी वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी बेसिकली, लाइक दे वर प्रिपेयर्ड हाउ दे हैव टू पिच इन आइडियाज, दे जस्ट वांटेड अ बिट ऑफ पॉलिश दैट डे, कि उनको एक इनकरेजमेंट चाहिए था कि मुझे पिच इन करना है क्या। And by the way, they won the prize also. So that was a achievement for Pivik, by the way, you know. So at that point in time, I was quite impressed seeing कि wow, यार, I mean, they're actually empowering women, you know. So at that point, I took the decision. I told her, ठीक है यार, I'll join. And it's quite interesting to work with her also and work within the community because you get to get very creative also, you know. So बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी इवेंट भी करा रहे हैं हम वेडनेसडेज, और सॉरी क्या नाम है, नॉट जस्ट इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स गोना बी अ वर्चुअल टॉक या सीरीज, तो ऑनलाइन टेक्निकल नहीं होंगी, वो इसी तरह की एक पॉडकास्ट टाइप की चीज़ होगी, बट इट वुड बी ऑनलाइन। सो जाहिर सी बात है हमारे पास माइक्स और ये पूरा सेटअप नहीं होगा, बट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स एंड बैरियर्स दैट वुमेन इन टेक फेस, और वी वुड बी डूइंग, यू नो, every Wednesday or stuff like that. That's like proper process है उसका, लेकिन when it comes to coming up with ideas in order to break barriers or break stereotypes and ultimately empower women, so that's like, you know, different activities हम लोग करवाते रहते हैं, करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा effort आए जो women को empower करे। So I think अभी सौदा ये वाली बातें mention करिए तो मुझे एहसास हो रहा है about the things that we have done so far and all of the appreciation that we have received as well, which is making me think कि you're actually doing something, huh? थोड़ा सा impact. And also, you know what, I see in our society women basically बहुत, एक तो women ना बहुत लेस नंबर होती है corporate world में, नो, प्लस उनका एक फैक्टर ये भी होता है कि from the backgrounds they come from, वहाँ पे भी काफ़ी criticism होता है, you know. ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को बहुत supportive environment, like I would say कि हम बहुत लकी हैं कि बहुत एक्स्ट्रा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, बिकॉज पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सबकी नहीं होती है, पेरेंट्स, यू नो. सो सम पीपल आर स्ट्रगलिंग अराउंड, यू नो. सो किसी को तो पता भी नहीं होता कि यार प्रोफेशनल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, मुझे मेरा करियर क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, यू नो.
So communities like these, I think they're very important because उनकी presence में आपकी learning बहुत different तरीके से हो. और वो शायद वो कॉन्फिडेंस जो आपको एक कम्युनिटी देगी ना, वो फिर And you know what? Even you're working, even you're studying at a university, also आपका course learning में भी आप इतना नहीं सीखते जितना practical environment, practical experiences के साथ सीख रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक कम्युनिटी जो है ना वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके आई होती है, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से कनेक्ट कराती है. अब जैसे पिछली दफ़ा की एक बात है, एक कम्युनिटी में हमारी एक लड़की है, वो वुमन, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. शी वन दैट, दो लड़कियाँ थी, शी वन दैट बिल विद एआई का इवेंट भी. तो शी वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड विद हर करियर ऑल्सो ना. तो शी वॉज लाइक यार मुझे कोडिंग पे नहीं जाना, आपकी जॉब बिजनेस एनालिस्ट काइंड है, मुझे ऐसा जॉब करना है वो. So so I was mentoring her, kind of just guiding her कि ऐसे pathway होता है, ऐसा road map होता है, you can do this, these are the skills जो हमें चाहिए होता है, skill set basically. तो उस वक्त अच्छा वो बात होगी ख़त्म और हम घर भी चले गए. उसके बाद she messaged me telling me कि यार वो thank you so much, you guided me on that, and felt so good because you were making a change. Yeah. Like when I was invited for the mentorship for this event Hackfest, वहाँ पे भी Terra Care जीता था. तो अब मुझे अच्छा, अब वो आप नहीं होता, आप फ्लो में सबको गाइड करके तो चले जाते हैं, बट वो आपको बाद में लिंक्डइन मैसेज आ रहा होता है, एंड देन दैट गाय जस्ट मैसेज मी, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी स्टफ. सो इट फेल्ट रियली, पता है वो बहुत अच्छा फैक्टर होता है कि इट्स नॉट द मनी अराउंड, दैट्स द मोटिवेशन. इट्स लाइक यू मेकिंग अ चेंज, तो अगर आप किसी की लाइफ चेंज कर रहे होते हो, वो एक अलग ही खुशी होती है आपकी, Definitely, वो slightest impact भी makes you feel एग्जैक्टली. वो पीस ऑफ माइंड, वो पीस एट हार्ट होता है ना आपका, वो बहुत डिफरेंट होता है अपेरेंटली. सो या तो what's your like Pivik का long term goal? टर्म गोल क्या है? This is literally the question that कल CEO से पूछा था हमारे ऑफिस में. शायद उसी वजह से मेरे दिमाग में, but it's a very good question. I think it's to empower women. It is, but when it comes, वो तो आप लोगों का मोटिव है ना. I think more of it is to let women know about Pivik. Firstly, I think ये तो बहुत short term goal है, लेकिन कि हम लोग किसी तरीके से अपनी एक ब्रांड ऐसी बनाए, प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंट कर लें. प्रेजेंस इतनी प्रोमिनेंट कर लें, बिकॉज सही है हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम कोई ना कोई चेंज लेकर आ रहे हैं, बट वो हम अपने ही एक तरीके से लोकल लेवल पर लेकर आ रहे हैं. कराची के और डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीपल डोंट नो व्हाट पिविक इज़, और if there is even an opportunity or a possibility or a space for them जहाँ पर they can be empowered, they can feel empowered or connect with each other. So while it comes to just Karachi, I would also like to see कि different और भी chapters हों जो इस तरह operate करे. I would also like to mention कि global level पर भी efforts हो रहे होते हैं. So when it comes to just the Karachi chapter is just catering to Karachi based events. But then there are global level पर efforts which are then once again वो जो efforts होते हैं, activities होती हैं, वो अक्सर online होती हैं. So there is like this a big career fair that Pivik holds every year, और उसका नाम है Get Hired. Okay. And I'm sure कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, but मुझे भी नहीं पता. ये बहुत अच्छे तरीके से पता था कि Get Hired क्या है. Get Hired में काफ़ी top notch companies आती हैं. And there are multiple things that we can do. We can apply for jobs. We can have like resume clinics, जो resume reviews करते हैं. We can network with the people that work in those companies. ये ऑनलाइन होता है सब कुछ. ऑनलाइन होता है, and it's catered through Zoom के जो rooms वगैरह होते हैं, उसके through you can have one-on-one conversations or calls with a mentor on career guidance. And it's in plans right now. Last year भी हुआ था, इस अभी भी in plans है. And I think Pivik is also, अभी globally, Pivik is also having a networking event also at California में. I just saw that. Yeah, so the chapters are So like every chapter is operating in its own individually, right? So also encourage. ऐसा नहीं है कि global team बैठी है तो वो हमें बहुत restrict कर रही है बहुत सारी चीज़ों पे. So they give us a platform to actually play very To do whatever you feel like, but with some restrictions of course because of the rules होते हैं. But I would say कि Kashish is also trying every time पे हम जब भी कुछ नया कर रहे होते हैं, she's always like bringing in ideas, हमारे ideas, So एक open platform आपको मिलता है तो एक बहुत different perspective होता है, तो वो एक बहुत ही different तरीके से चला रहे होते हैं हम. Yeah. Like highlight the importance of communities for women in tech. कि क्यों
Yeah, that would have been my next question. Because there is a slight bit of a stereotype, there is a bias in our society that holds women back. And oftentimes it is internalized as well inside us कि हम अपने आप को खुद भी hold back करते हैं. So there is a big need for like someone to push us forward. And to push us forward, we need to have someone with us. We cannot operate alone. हम लोग अकेले नहीं बैठ के कह सकते कि नहीं अकेले सब कुछ करना है. There are a lot of things that we would have liked to discuss when it comes to women in tech. There are many barriers, many stereotypes जो working women के लिए भी होते हैं, students के लिए भी होते हैं, and there are often times that they hesitate before exploring their potential. वो करने से पहले वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकती. First चीज़ जो बहुत core चीज़ जो दिमाग में आ रही होती है वो ये होती है कि I am a woman. So maybe I should hold back, maybe I should hesitate, maybe I should. Because there are a lot of जॉब्स ऑल्सो जो आपको करने नहीं दी जाती है पेरेंट्स. आपको पता है कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है यार तुम लड़की हो ना, तुम करो, तुमसे ना हो पाएगा. कभी कभी होता है ऐसा. मतलब डेफिनेटली होता है. आप ट्राई भी करना चाह रहे होते हैं कि मैं अपना फुट फॉरवर्ड करके करूँ वाला काम, लेकिन आप नहीं कर सकते. सोसाइटी रोक देती है. प्लस इन्वायरमेंट भी होता है वेरी ऑनेस्ट कि आप नहीं कर सकते, फिर आप वो अपने लिए इम्पॉसिबल ही देख रहे हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मतलब यू वर्किंग वेरी हार्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मैंने ये सुना है बहुत सारी लड़कियों से. लाइक हम पिविक में काम करते हैं, कम्युनिटी में अक्सर बातचीत हो रही होती है, तो उसमें बहुत दफ़ा सुना है कि हम क्या करते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेज एंड नाइट्स लगा रहे हैं, हम लेट सिटिंग. अच्छा ठीक है, आप कभी कभी ऐसा होता है आप लेट सिटिंग नहीं कर सकते बिकॉज यूर वुमन, राइट, बिकॉज आपका कन्वेंस नहीं होता. सो एवरीबडी इज़ नॉट लाइक हर किसी की अपनी गाड़ी और चीज़ें हो. कुछ लोग बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं यार, वो अपना सब चीज़ें देख के चल रहे होते हैं, राइट. सो यार तो वो रुक नहीं सकते, राइट, लेकिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होती है. बट आपको वो चीज़ दी नहीं जाती ना. आपको बोलते जाता है अच्छा यार तुम तो जल्दी जा रहे हो ना, 5:30 बजेंगे ना, अब तुम घर चली जाओगी. ऐसा ही तो मज़े वुमन कार्ड प्ले करते हैं, इस तरह की बातें हो रही होती हैं. तो आपको मतलब ऐसा भी फ्लेक्सिबिलिटी सोल्यूशन हो सकता है ना. लाइक आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इन माई ऑर्गेनाइजेशन वी वर गिवन दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि अच्छा आप घर से कनेक्ट हो जाए और काम कर लें, तो आपको बड़ा एम्पावर्ड फील होता है कि अच्छा चलो हमारी भी इम्पोर्टेंट. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द बॉसेस आल्सो कि हाउ योर बॉस इज वेरी सपोर्टिव टू लॉट ऑफ थिंग्स. डेफिनेटली. इवन इन द ऑर्गेनाइजेशंस एक और चीज़ ये भी होती है कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आपने जाके हाईलाइट किया, राइट, तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रस्ट फैक्टर इशू आ जाता है. सम इज शटिंग आउट एंड से आई हर्ड अ लॉट ऑफ सिनेरियोज जो मेरे सामने आते हैं. मुझे बड़ा बुरा फील होता है देख के कि वो बॉसेस कहते हैं ऐसा तो नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि आपको वो एम्प्लॉई को कवर अप करना है इसलिए आप जो है वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है. लेकिन कुछ बॉसेस ऐसे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर बोथ दी फैक्टर्स, लेकिन फॉर अ वुमन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे जो बैरियर्स होते हैं ना, इसके लिए पिविक डज इज कि हम सेमिनार्स कराते हैं ऐसी चीज़ों में जिसमें हम को एजुकेट करें कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, how you should empower yourself, how you should stand up for yourself, बाकी I think Kashish would add more to it. मैं यही बात कहना चाह रही थी कि it's a two-way thing. Efforts दोनों तरफ से ही लगने पड़ेंगे when it comes to women themselves. They have to find their communities, they have to find their people. So ये वाली चीज़ आजकल हमारे सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रही होती है कि find your people. आई नो थोड़ा सा कॉर्नी लग रहा है अगर आप एक पोस्ट पे देख लो फेसबुक पे, लेकिन इफ़ यू जस्ट एक्चुअली फील इट, इफ़ यू एक्चुअली थिंक ओवर इट, यू हैव टू फाइंड योर पीपल इन ऑर्डर टू फ्लरिश, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल. सो मैं यही चीज़ कहूँगी कि व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग इन अ फील्ड where it's not believed or where it's seen that maybe women might not be the best at something due to many factors. बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, either a woman is married or if she has kids or stuff like that. उन चीज़ों पर बेस करके biases बन जाते हैं. Exactly, that's very true. पे ना this is I would like to say, and I don't know if you guys agree or don't, but it is a very well established fact कि tech is actually a male dominated field. वहाँ पर आप ज़्यादातर you will see like there, if you even do up a little Google search
कि I see Mubashir sitting like this. I think he's now. No. I don't. No. I really don't have the data for that. So, and she's saying that, so I'm taking it like definitely ऐसे ही होगा. And I know I can clearly see that fast में हर क्लास में 2 लड़कियाँ 40 लड़के. Look at our own team, come on. तो मतलब अगर Even in my team also, I'm the only one who had. तो yeah, I have seen that too. Man, trust करो. I'm not. Two girls working in. लेकिन हम लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव. मेरा बस ये है कि नहीं, मेरा प्राइमली ये है कि आई कांट सिट फॉर बहुत. मेरे मतलब मैं चलता रहता हूँ. अगर आप कभी कशी से पूछे, मैं ऑफिस में हर वक्त चल रहा होता हूँ. मेरी आदत थी, जब मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था, मैं टेबल पे डब्बे रखता था और खड़े होकर काम करता था. मैं नहीं बैठता. मेरे डेली 20,000 वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं. That's great. हाँ तो yeah, that's the only reason, because we're tethering to our chart. Yeah. That's the last thing I would like to say कि when you see communities like those, come forward, connect with us, network with us. Always हमेशा एक open space होता है communities में, क्योंकि हम एक corporate organization तो नहीं है. मैं आपकी boss कभी भी नहीं बन रहूंगी, मुझे बनना भी नहीं है. बननी भी नहीं है मेरी बॉस. कभी कभी तो मुझे बोलना पड़ता है, ब्रो प्लीज माय बॉस. अच्छा, एक और आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि कम्युनिटी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन शुड कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द कम्युनिटीज़, बिकॉज एक तो वो आपको प्लेटफॉर्म देती हैं, दूसरा यू गेट टू नेटवर्क, तीसरा यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. वहाँ से यू लाइक गेट टू लर्न विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स अराउंड. हाँ, कभी कभी ये बहुत टैबू भी बना हुआ है. टैबू तो नहीं, खैर एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा होता है कि वुमेन नॉट सपोर्टिंग अनदर वुमेन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें सोसाइटी में, बिकॉज वी आर आवर ओन, मतलब एक होता है ना, पेरेंट, फ्रेंड, सब कुछ सपोर्ट, एवरीथिंग, यू नो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंस्टेड ऑफ रनिंग अ कॉम्पिटिशन वी शुड एक्चुअली हेल्प ईच अदर, यू नो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो नॉर्मल बेसिक है कि हमें करना चाहिए. पाकिस्तान में बहुत कम है ये. Yeah, I think there should be, not specific to a gender. हमें as a human हमें एक दूसरे को करना चाहिए, लेकिन नहीं करते. नहीं वो दूसरे की वो तरक्की देख के हमें जलन होती जलन होती है. यस, एग्जैक्टली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. Specifically, Very important. whenever we're in different organizations, I think we should find each other. And I tell you one more thing. I was traveling last week, so I just messaged her, telling her very informally that sorry, I'm traveling, so I won't be available. But I would like to appreciate she actually took up that work and started doing it and carried it along so effortlessly कि मुझे एक कॉल भी नहीं की उन्होंने बिल्कुल. बस लास्ट डे बेचारी ने मैसेज किया कि कब आ रही हो वापसी. I was like, dude, मेरी फ्लाइट कैंसिल होने वाली थी, अब मैं आ रही हूँ वापस. So yeah, so you just came back yesterday? No. I came back on Saturday. Okay, हफ्ता हो गया. हफ्ता हो गया, हाँ. Right. तो ये है कि in the communities we are actually supporting each other. We are actually lifting each other up, giving each other confidence, giving each other opportunities. ऐसा नहीं होता हमारी कम्युनिटी में कि अच्छा शी इज़ द चैप्टर लीड तो यही हर चीज़ में आगे होंगी. फर्स्ट डे जब मैंने इनके साथ बात भी की थी, लाइक सवदा देखो कुछ चीज़ें तुम्हें खुद भी करनी पड़ेंगी. आई एम नॉट द ओनली वन हु विल टेक ओवर थिंग्स. आई वाज लाइक, ओह वाओ, she is my kind of person. One question that I have, what do you mean by join the community? वो तो फेसबुक जाके ज्वाइन कर दिया, उसके अलावा क्या? जॉइन द सेंस कि एक स्क्रूटनी होती है कम्युनिटी एंटर होने के लिए. राइट, जब मैं मार्केटिंग लीड एज अ मार्केटिंग लीड ज्वाइन करी थी, ऑफ कोर्स आई हैड अ कन्वर्सेशन विद कशिश और हमारे स्किल सेट पे बात हुई थी. फिर आई थिंक हमने बहुत इनफॉर्मली टॉक किया था, मतलब कि आई टोल्ड हर अबाउट माई इंटरेस्ट, मेरा वर्क एक्सपीरियंस पे बात हुई. And I remember she told me, so I find you very social. I'll actually talk to you later. हम बात करेंगे इसके ऊपर ये वो. तो you know, तो that is how you join the community. You know, like getting to know people and then taking the step forward. कोई आपको खुद बोलने नहीं आएगा कि प्लीज आओ. You know, बहुत कम ऐसे chances होते हैं जहाँ लोग आपको recognize कर रहे होते हैं. कभी कभार आपको खुद forward आना पड़ता है ऐसी चीज़ों में. You know, so it's very important कि हम communities आए, join करें and be a part of it. Yeah. So do you want to add anything or should we wrap it up? Yeah. लास्ट चीज़ वो भी मैंने एजेंडा में अपने दिमाग में बनाई हुई कि यही लास्ट चीज़ होनी थी. तो मैंने कुछ women in tech से बुक recommendations ली थी that I wanted to mention in this podcast. इसके लिंक्स भी दे दीजिएगा हम भी. Definitely, मैं actually mention भी कर दूंगी और मेरे पास एक पूरी ड्राइव बनी हुई है. I'll share that as well. A few books that are quite motivational and can help you in your corporate job or can generally help you with motivation are Ryan Holiday's two books, Ego is the Enemy and Obstacle is the Way. Yeah. ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ी थी खुद और मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ था मुझ पर.
one other book that helped me during my office life was Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People. उसका एक corporate version होता है. मुझे लगा वो कहीं से मिला. I will definitely share that. मेरे पास था and I lost it. So, but that book was also very good. It actually teaches you empathy with each other. It teaches you a lot of gender-based biases and stuff like that as well. Then there are two books that I would like to specifically mention on women empowerment and about the struggles and biases that women face in the tech world. One of them is Lean In, and that was recommended by our very own White Corp. Read that book. It's a very nice book. Okay. है हमारी White Corp की. उन्होंने ये actually mention किया. उन्होंने जब mention की मैं सुबह से बैठ के पढ़ रही हूँ. आज मेंशन किया उन्होंने? आज ही mention. कहाँ पे मेंशन किया उन्होंने? It's on the women channel of Slack. Yeah. अच्छा फिर सही है. मैंने नहीं देखा. Right. I didn't know there's a women channel in Byte Corp. नहीं मैंने book वैसे भी नहीं पढ़ी थी. The book reader. Actually, I'm also a book reader, but not that much. मतलब I read it when जब मेरा mood. Us. I've read this one book जो मैं अभी बीच में पढ़ी थी, Psychology of Money. That's a good. I've heard about it. I've heard about it. Good books. I mean, I think women should read it because you know, हम लोग है ना, we as a woman are not even taught about budgeting in money also, how to handle your money, you know. So it's very important कि आपको ये पढ़नी चाहिए किताबें ताकि आपको पता हो. Like to be very honest, मैं भी ना, I am a very shopaholic person. If I go to a mall, I'll be just like, ये सब खरीदना है. लेकिन हाँ books तो वैसे खैर exclusively of the gender सबको ही पढ़नी चाहिए. There's like always something to learn to. मैं books ऐसे होता है कि whenever I go somewhere I see a book I'm gonna buy it. और वो शुरू के 2 pages में bookmark पड़ा होगा. Nothing else. नहीं, some people are into videos also and watching, you know, documentaries also. Yeah, I love documentaries. Yeah. I think the last book that was कि Nice Girls Don't Take the Last Seat. I think करके कुछ थी. It's Nice Girls Don't Get the Corner Office. And it's written by Lois P. Frankel. ये भी मैं share कर दूंगी. It's also based upon this opinion that has been created that women have to be nice, they have to be very gentle and caring. When it's not like a basic necessity to be nice. हमें ज़रूरत नहीं है. We can be professional. Yeah. I think you can be professional and nice at altogether. I think फिर यही वही बात आ जाती है. लोग समझते हैं कि straightforward का मतलब होता है rude. Straightforward, there's a fine line between being straightforward and being rude. So yeah. I think this is also a very good book. तो 4 books मैंने बताई हैं. उसके बाद Psychology of Money तो definitely. And there is one more book also that I read because मुझे बहुत ज़्यादा imposter syndrome रहता था पहले. अब थोड़ा कम हो गया है. So there's like Who Says You Can't, You Do. Daniel, I don't know, I have forgotten the name of the writer, but Who Says You Can't, You Do. It's a very good book because it teaches you about empowering yourself and it's like taking one's confidence, अपने ऊपर confidence लाना कैसे है. And पहले starting में ना वो आपसे letter sign कराते हैं पूरा कि भाई letter लिखा हुआ है and it's like you have to sign that letter for yourself basically. Okay. And then after you read the book वो फिर आपको reread कराता है वो letter basically. तो it's like you writing a letter for yourself. नहीं बोलता अक्सर आपको बोलते हैं journaling करनी चाहिए. So it's kind of a journal kind of book है. It's a very good book by the way. So I think these 2 books, The Psychology of Money and Who Says You Can't, You Do. पढ़ना चाहिए. Definitely. So that was the list of the books that you guys recommend. So thank you very much guys for your time. It has been a very good conversation. It was a good conversation. Yeah, it was a very good conversation. पता भी नहीं चला time कैसे गुजर गया. अभी constraint ना होता तो हम probably लंबी भी कर लेते और but we have time constraint. So thank you again guys. Thank you for your time. Thank you so much. We'll see you. Yeah, thank you so much for inviting us. Allah Hafiz.